Welcome to the online class in English. Students, last time we had completed the second unit of 3 questions. Now we are going to start the unit 3 of the last unit. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. এই আহত ব্যক্তি পাখরু বিদায় নেই রাজা ঘর সামনাকু যেটা চালিয়া পর্চ সেটাকু আসিলে এবং চারিআড়কু টিকে অনেইলে হর্মিটଙ୍କୁ খোঁজিলে. Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ପଚାରିବେ ହର୍ମିଟଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର. The hermit was outside on his knees, sewing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट बाहर थिले, घर बाहर तांको कुड़िया बाहर आंठू माड़ी बसते ऑन हिज नीज करथुले कौन ना सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. पूर्व दिन खोला जाइथिबा मंदा बा धाड़ी रे एठी बेड माने मंदा गछ लगेबा सेथिरे मंजी पुतुथिले. इट इज सिम्बॉलिक. यार अर्थ जे आमे एज यू सो सो यू रीप कथा अच्छी. जिमिति तमे बुणीब सिमिति काटिब, कर्म को लेकिन फल. तो एठी मंजी बुणीबा अर्थ भविष्यतर कर्म को निर्धारित करिबा बा फलाफल को अपेक्षा करिबा. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड. राजा गले पाखकू हर्मिटଙ୍କ पाखकू एवं कहिले, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माय क्वेश्चन्स वाइज मैन. कहले शेष थर पाई मु आपनको अनुरोध करुच्ची, आपनको प्रार्थना करुच्ची मो प्रश्नर उत्तर दियंतु हे विज्ञ व्यक्ति. आश्चर्य कथा, उत्तर भी आश्चर्य थिला. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. उत्तर देले साधु जे आपन को उत्तर मिली जाइछि. से पर्यंत से तांकर दुर्बल पादरे गोड़ उपरे भरा देकी थिले एवं अनेइले रजा को जे कि तांको पाखरे छिड़ा होइतिले तांको सम्मुखरे. राजा आश्चर्य होला हे गले. सॉरी, हाउ आंसर, व्हाट डू यू मीन. तर किमिति मु उत्तर पाइले, आपण कोन कहया पई चाहउछंती. आस्क द किंग. सो टू एक्सप्लेन कले हर्मिट. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. एटी डू नॉट सी माने डू नॉट अंडरस्टैंड. आप कौन बुझी पाऊना. हर्मिट कहले बा साधु कहले, इफ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस एस्टरडे and had not dug those beds for me but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me. राजा कहे, हर्मिट कहले, जदि काली आपण मो प्रति दया देखी न थांते, पिटी माने दया, एटी पास्ट पार्टिसिपल है, हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस, मोर दुर्बलता प्रति जदि आपण दया देखी न थांते बा यही मंदा करी न थांते
and had gone your way ଏବଂ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, that man would have attacked you. ସେଇ ଦାଢ଼ିବାଲା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରିପେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ରିପେଣ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଅନୁତାପ କରିବା। ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ, ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ବା ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଅଫ୍ ନଟ୍ ହାଭିଂ ଷ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମି। ସୋ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ୱେର୍ ଡିଗିଂ ଦ ବେଡ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କ'ଣ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ମି ଗୁଡ୍ ୱାଜ୍ ୟୋର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍। ଏବଂ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସମୟଟା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଥିଲି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। And afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. Second ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଆହତ ଥିଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାମ। But if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man. ଯଦି ଆପଣ ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାର କ୍ଷତର, ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଝରି ଝରି ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମଝୋତା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ସେବା କରିବା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। Remember then, there is only one time that is important now. ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ବା ଆମେ ଜାଣୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ନାଓ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ମି and I am also important to you. ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ ଦ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍। ସୋ ୱି ଆର୍ ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଦରକାରୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି ନାଓ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚେ, ନାଓରେ ବଞ୍ଚେ, ଏବଂ ନାଓକୁ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା, ନାଓକୁ ଯେ ଏନକେଜ୍ କରିପାରିଲା, ନାଓକୁ ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲା, ସେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ। କାରଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। Future is built upon the platform of now or the present. ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗଠିତ ହୁଏ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ରୂପ ପାଏ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦୁପଯୋଗ କରେ, ତା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ନାଓକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା।
समय को सम्मान दबा आम समस्ते कथा जाचु यू स्टूडेंट्स तुम तो बर्तमान छोट अच्छा जस्ट यू हैव कंप्लीटेड योर स्कूलिंग एवं तमें फर्दर स्टडी पाई कॉलेज हायर एजुकेशन पाई आगु पढ़ो आहरी पढ़ो तेरे गोटे कथा मन रख आजिर दुनिया रे जे पिला समय को सम्मान दिए समयर सदुपयोग करे से निश्चित भाव में सक्सेसफुल हुए बा हब ए कथा तमें अंगे लिभौथुब प्रतिदिन घटन खबर कागज रे आमे देखुछु अति निम्न स्तर दुख जंत्रणा जर्जरित पिला माने मध्य बहुत भल रिजल्ट करिकी सक्सेस पाउचंती तार कारण होची से समय को नष्ट करी नहीं समय को यूटिलाइज करिची समय को सम्मान देइची तो समय को जदि आम सम्मान दबा समय बड़ बलवान सी आमको शक्तिशाली करिवो आम भविष्यत उज्जवल हब भविष्यत शक्तिशाली हब सो नाउ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर तेणु नाउ उपरे आमर किछि ग्रिप रही किछि मुठा रही किछि कंट्रोल रही नाउटी आम हाथ खसी गले पर मुहूर्त यह अतीत हो जाए तेणु नावर आमे सदुपयोग करवा द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसरी मैन इज ही विथ हुम यू आर तेणु आउ एक तुम चिंता कर भाव जहाँ सहित तुम अछ फॉर एग्जांपल तुम बर्तमान मो सहित अछ I am the most important person for you and you are too for me मो पाई मध्य तमें सबुठारु इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र रे भाबिबो पाबा देखिबो आमे जीवन क्षेत्र रे चला पथरे केते अजणा लोकंक संस्पर्श रे आसु एवं सेमानकर साहाय्य लोड़ू कारण से समय रे से होचंती सबुठारु आत्मीय से होची सबुठारु इम्पोर्टेंट व्यक्ति घर लोक कई पाखरे नाई कई नाहांती किंतु अजणा लोकर आमे साहाय्य नौ एवं से मध्य साहाय्य करिताए बा केतेबेले यार उल्टा परिणाम भी होता है फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनी अदर एल्स यह ये सत्य बा इम्पोर्टेंट देखी जानती नहीं जे से लोकटी आउ केबे आउ कहा सहित चली पारिबो कि नहीं डीलिंग डील विथ माने व्यवहार करवा बिहेव करवा डील इन होची बिजनेस करवा दुईटी फ्रेजाल भाव तुम जानिथिबो डील विथ आउ डील इन डील इन होची व्यवसाय करवा आउ डील इन होची टू बिहेव तो देखा जाए जे फॉर एग्जांपल माय फादर डील्स इन मेडिसिन मो बापा मेडिसिन बिजनेस करती तेणु से जड़े मेडिसिन बा केमिस्ट बा ड्रगिस्ट बिजनेसमैन तेणु आम सहित जे अच्छी से हूँ आम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति वर्तमान तार मंगल करवा टू डू हिम गुड हूँ मोर इम्पोर्टेंट कार्य फॉर दैट पर्पज अलोन was man sent into his life ताले आला प्रकृष्ट समय नाउ वर्तमान तो वर्तमान को जे यूटिलाइज करि पाला कैपिटलाइज करि पाला एनकेज करि पाला तार फ्यूचर ऑटोमेटिक गठन हब द्वितीय रे वर्तमान तुम सहित जे अच्छी तमें होच ता सबुठारु इम्पोर्टेंट व्यक्ति
एवं से होची तुम पाई सबुठारु इम्पोर्टेंट व्यक्ति एवं तार मंगल करिबा होची सबुठारु इम्पोर्टेंट कार्य तुम पाई। यही कारण ही मनीष ए दुनिया को आसीची। ओके बॉयज स्टूडेंट्स आमे एबे गोटे पोएम पढ़ा आउ कारण पोएम टी आमर पढ़ाई एपर्यंत जदिओ बोधे पोएम टी तमें जानिच आगुरु Stopping by woods on a snowy evening by Robert Frost। ये कविताटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जने अमेरिकन पोएट with great philosophical bent of mind तांकर लेखा गुड़िक उच्च कोटीर एवं रियलिस्टिक कारण एथिरे रूरल लाइफ रो चरित्र चित्रण होता है। जो ही वाज एन अमेरिकन यो परवर्ती समय से पोएट से अमेरिकन हो जाइए एवं अमेरिका एस्टाब्लिश हो जाइए तांकर लेखारे आमे गोटे अमेरिकन मानकर छाप पाऊ। से मध्य जड़े नेचर पोएट कहले अत्युक्ति हम ना कारण नेचर को से तांको कवितार स्थान देइचंती। आमे देखिबा ये जो कविताटी बहुत इम्पोर्टेंट कविता इन द सेंस जे जीवन धर्मी बा रियलिस्टिक किंतु टे चिंता करिया को पड़िबो कारण यार दुईटा मीनिंग अच्छी। गोटे हूँ इंट्रिंसिक मीनिंग बा आभ्यंतरीण धारणा बा अर्थ आ गोटे हूँ सरफेस मीनिंग बाह्य बा ऊपर चिंताधारा। एटी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्नोई इवनिंग माने कौन ना तुषार पड़ुथुबा बरफ पड़ुथुबा एक संध्या। कवि बा जने ट्रैवलर जे कि घोड़ारे बसिकी जाउचंती जंगल पाख देकी हठात खूब जोरे बरफ पड़ुची एवं से अटकी जाइचंती attracted by the beauty of nature, especially of the jungle in the evening time। संध्या समय जंगल पाखरे से केबे से बाटे जानती नहीं तांको घोड़ा जे कि ट्रैवलर हुए तो से निजे पैठे थांती बा एनीबॉडी एल्स तो एठी आमे ट्रैवलर बोली कहबा से अटकी जाइछंती से जंगल पाखरे। टिके पचारे गोटे मिनिट जे जानी पाले ना छुआ बा एठी जे ट्रैवलर जंगल पाख दे जाउचंती समय होची संध्या। संध्या आसन्न आमे जानिछु जंगल पाखरे संध्या समय बेसी अंधकार हो जाए। एठी तुषारपात होची स्नोफॉल होची तो कवि बा एठी जे यात्री बा ट्रैवलर जे घोड़ारे बसिके जाउचंती हठात करी अटकी जाइचंती। बीइंग अट्रैक्टेड एंड अरेस्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द जंगल द ट्रैवलर the narrator stopped by that woods to enjoy the beauty of nature, and certain questions arise in his mind and he wanted to give answer to it. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. एटी ट्रैवलर बा से कवि हूँ तांको मनरे प्रश्न आसूची से अटकी जाइकी घोड़ारे बसी कहउचंती ए कहार वुड्स माने जंगल
छोट जंगल बा फॉरेस्ट वुड्स कह जाए से कहते मु भावुची जे मु जानी ए जंगल रो मालिक किए ये हूँ सरफेस मीनिंग बा बाह्य मीनिंग हिज हाउस इज इन द विलेज दो जदिओ तांको घर गाँव रे अर्थात एठू दूर रे आमे समस्ते जानिचु जंगल रो मालिक किए जंगल रो मालिक होचंती भगवान बा द क्रिएटर से सबु जंगल को सृष्टि करचंदी अन्य दृष्टि देखिले मनीष मध्य जंगल लीज नहीं थाए जो माने जंगल जात द्रव्य व्यवसाय करती जंगल को लीज नियंती तो एठी कवि मनरे बा ट्राभेलर मनरे गोटे प्रश्न आछे से घोड़ा पीठे बसिकी कहउचंती भावुचंती ये जंगलटी कहार मु भावुची मु जानिची हिज हाउस इज इन द विलेज दो जदिओ तांको घर गाँव रे अर्थात एठू यथेष्ट दूर रे ये सारे 11टा जो 10 मिनट थी मत कटिगला सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो से मते देखिबे नहीं जे मु एठी छिड़ा हेची तांकर बर्फावृत जंगलटी को देखिया पाई बा उपभोग करिया पाई ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो तांकर ए जो जंगल ताहा बरफ रे किमती भर्ती हो जाउची ताकू उपभोग करने ब्यूटी को उपभोग करने मु जो ये अटकी जाइए से मते देखी पारिबे नहीं तो नेग्लेक्टिंग माय ड्यूटी मु चली जावा कथा किसी गोटे पर्पज रे किंतु एटी अटकी जाइए नेचुरल ब्यूटी रे अट्रैक्टेड होइकी आउ एते सुंदर ए सौंदर्य को मु आड़े की जाई पारु नहीं तेणु मालिक जे जंगल रो से भगवान हूँ बा कौन सी व्यक्ति विशेष हूँ से मते देखी पारिबे नहीं जे मु एठी छिड़ा हो जाइछि अटकी जाइछि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो ये जो तांकर जंगल which is being filled with snow God won't be able to see me because he is far away from here. He is the owner of this jungle. He is the owner of everything. अन्य पक्षरे आमे जदि देखिबा सरफेस मीनिंग टी जे जेकोसी व्यक्ति मध्य जंगल रो मालिक हो पारे जंगल को लीज नहीं पारे तो वर्तमान ट्रैवलर को मन को प्रश्न आसूची से कहते माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर माई लिटिल हॉर्स एटी लिटिल हॉर्स रो अर्थ होची छोटिया घोड़ा नुहे एफेक्शनेट घोड़ा डार्लिंग मोर डियर हॉर्स निश्चित भाव में कौतूहल है भावुव मस्ट थिंक इट क्वियर एस्टोनिश है कि आश्चर्य है कि क्वियर मीन्स एटी एस्टोनिश बा से स्ट्रेंज है कि भावुव एटी कौन एमती घटना घटिला क्वियर अर्थ स्ट्रेंज तो से भावुवे जे आश्चर्य है कि कहीं अटकी गली मु मोर लिटिल घोड़ा एटी लिटिल घोड़ा नुहे छोटा घोड़ा
एटी लिटिल होची डियर हॉर्स प्रिय घोड़ा निश्चय भावुव आश्चर्य है कि टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर कहले कहीं एठी तो किसी फार्म हाउस नाई मु फार्म हाउस रे जाई रुहे घोड़ा भावुव तार रहिबा जगह होची फार्म हाउस रे एठी तो चारियाडे खाली जंगल कौन सी फार्म हाउस नाई से आश्चर्य हो जाउथुबो किए घोड़ा कारण एटा तार यूजुअल प्लेस नुह कि यूजुअल टाइम नुह से एटी अटके नहीं आज सब किसी अद्भुत लगुच तेणु मो घोड़ा निश्चित भाव में भावुव टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर ये तो किसी फार्म हाउस नहीं घोड़ा जाकि फार्म हाउस रे रुए आमे जाकि फार्म हाउस रे पहुँचू एठी की जगह जे मालिक अटकी गले तो फार्म हाउस टा कौटी ना बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर तो फार्म हाउस टा होची बिटवीन वुड्स एंड फ्रोजन लेक ए जंगल एवं आगु को रही बरफावृत फ्रीज फ्रोज फ्रोजन फ्रीज हो माने जमाटो बांधी जावा फ्रिज रो पीपी होची बा V3 होची फ्रोजन फ्रीज फ्रोज फ्रोजन अर्थात जमाटो बांधी जावा तो ये जो जमाटो बांधी जाइए आगो को बरफ हो जाइए पानी लेक पाखरे आठी रही जंगल मझीरे होची ए ट्रैवलर बा ए घोड़ार रहिबा जगह आज ए स्नोफॉल हबारू जगहटी बहुत अंधार हो जाइए ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्ट ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक तो घोड़ा कौन कला ना हार्नेस बेल्ट्स मीन घोड़ा बेकरे बंधा होइतिबा जो घंटी जेमिति कड़े बोहिकी आणला बेले बलद बेकरे झुला होता है घंटी गोटे टेंग टिंग टेंग टिंग होगी बाजे एवं जानी हुए एटी सेमिति घोड़ार बेकरे झुलुवा घंटीटी जहाँ को हार्नेस बेल्ट बोली कहुच्छी सेठी घोड़ा टिके बेल्ट टाकू झंकी देकी टे बेल्ट को बजई देकी पचारिया को चाहिला टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक घोड़ा आज आश्चर्य हो जाइए मालिकंकर कौन है से आज ये अटकी गले व्हाई हैज ही स्टैंडेड हियर विदाउट एनी वैलिड रीजन आमे तो ये रोना आम जगह हूँ फार्म हाउस तेणु से घंटी बजेकी मालिक को टिके कौन प्रकृतिस्थ बा अलार्म करदेला जे इफ टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक काले किसी भूल हो गला कि मालिकंकर जे से एठी अटकी गले एट दिस अनयूजुअल प्लेस एट दिस अनयूजुअल आवर ये अस्वाभाविक स्थान रे अस्वाभाविक मुहूर्त रे ये समय तो आम से रुहती नहीं आम रोना से रहीगले कहीं हे तो पचारियापाई घोड़ा एभली पचारा ए मालिक को पचारियापाई चाहिला टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक किसी भूल भाल हो गला कि मालिक बाटबणा हो गले कि एठी आउ किछि शब्द नहीं पूरा निस्तब्ध किंतु निस्तब्धता भितर मध्य किछि शब्द सुना जाउची से शब्द कौन द ओनली अदर साउंड्स मीन साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड
and downy flake. तो स्वीप पत्र सबू पड़ी जंगल झड़की पवन ता खरका हो जाऊँगी. The only other sounds the sweep of easy wind. धीरे धीरे पवन बहुची आउ डाउनी फ्लेक. एटी डाउनी फ्लेक रो अर्थ स्नोफॉल जो होची ताहा धड़ा पर भली पक्षीर पर भली देखा जाउची तळकू खसुची. इजिली फॉलोइंग विंड स्नोइंग फॉल साधारणतः अल्प उच्चरू जो बरफ पड़ुची से जो तुषार पड़ुची ता किन देखाउची ना पक्षीर पर भली धड़ा पक्षीर पर भली. ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. ये बड़ चित्ताकर्षक दृश्य मनोलोभा दृश्य. ए रेयर साइट दैट द ट्रैवलर हैज come across. He had never come across this sight before. आज ये जो गोटे संजोग होइछि इवनिंग माड़ी आसुची सुसु पवन बहुची आउ जो बरफ पड़ुची ठीक पक्षीर पर भली एभली एक मनोलोभा दृश्य देखिकी द ट्रैवलर मे बी द पोएट whoever may be has become dumbfounded, enchanted, spellbound. घोड़ा भी आश्चर्य हो जाइए कारण घोड़ा यूजुअली एटी के रुए नहीं. से सीधा मालिक सांगे जाए ता फार्म हाउस रे जोटा तार रहिबा जागा. हठात सेठी जाए से भावुची जे मालिकंकर कौन है कि आज ये रहीगले. तो पवन सुसु हो बहुची पत्र गुड़ा सब खरका हो जाऊँगी आ उपरू स्नोफॉल होची संध्या माड़ी आसूची. तो ये है कविताटीर सरफेस मीनिंग. यार इंट्रिंसिक मीनिंग बा आभ्यंतरीण अर्थ भिन्न जहाँ यही कविताटी मध्य बड़ क्लास रे पढ़ा जाए. इट इज प्योरली फिलोसॉफिकल बट रियलिस्टिक. इट हैज़ एन अप्रोच टू लाइफ. इट हैज़ ऑल्सो एन अप्रोच टू नेचर. नेचर इज ब्यूटीफुल. नेचर इज ऑलवेज एन्चांटिंग. तो ये कवि मन को जो प्राकृतिक दृश्य छुईची जोटा कि तांको विमोहित कर दे. से कहते कवि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप. दिस इज रियलिस्टिक. जंगल तो लवली, जंगल डार्क एवं डीपली डार्क. गभीर जंगल रे अंधार गभीर हो जाए किंतु जंगल रो भी एक ब्यूटी अच्छी. जंगल रो एक मनोलोभा आकर्षणीय शक्ति रही. किंतु ऑल दिस थिंग्स सॉरी ट्रैवलर को बा नरेटर को बा कवि को जे भी हन ना कहीं प्रकृतिस्थ कर देछि. तांको नहीं आसी रियलिस्टिक दुनिया को. हठात करी से ही हैज रिटर्न टू कॉन्शसनेस रियलिटी. से जागी उठिचंती तांकर मोहभंग हो जाइछि एवं से प्रकृतिस्थ हो कहउचंती बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप. मोर तो सब प्रॉमिस अच्छी. मोर तो आहरी बहु बाट जीवार अच्छी. मोर बहुत कर्तव्य आज बाकी रहीगलानी. मु कौन एठी रहीगली. व्हाई हैव आई स्टैंडेड हियर. से निज को निज पचारुचंती. परवर्ती दुईटी लाइन
जहाँ विषय हुए तो तुम आगु पढ़ी जानी ये आम समस्त प्रযোज्य एवं स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दुईटी बड़ प्रिय लाइन थिला एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप देख रिपीट होती गोटे सेंटेंस विथ डिफरेंट मीनिंग गोटे हूँ मत से इंट्रिंजिक आ गोटे हूँ सरफेस मीनिंग एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ये बिफोर आई स्लीप माने आजिर दिनांते आज दिनर शेष मोर कर्म सरीगले मु शोइबा को जाए प्रत्येक मनीष किंतु मु मोर फार्म हाउस को जीवा पड़ो मत रेस्ट हाउस को जीवा पड़ो से आहरी अनेक बाट अच्छी अर्थात आज दिन मत मोर अनेक काम बाकी रही जाइए एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एवं द्वितीय लाइन टी जोटा गोटे इटर्निटी बहन करे ता भितर रही शाश्वतता कौन ना मत बहुत बाट जीवा पड़ो ये हूँ गोटे संक्षिप्त यात्रा दैनंदिन जीवनर आ गोटे हूँ महायात्रा बा शेष यात्रा एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप शोइबा पूर्वर अर्थात शेष निद्रा जीवा पूर्वर मते बहुत बाट जीवाक पड़ो मते बहुत काम करने को पड़ो कह जाए मनीष दुनिया को आसवा पूर्वर जीवन को आसवा पूर्वर भगवान को पाखरे प्रमिश करि थाए जेतले भगवान ताऊ पठे थांती दुनिया को जे से एठी जेते दिन रहिबो ए पार्थिव दुनिया रे से कर्म करिवो कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवनर मानदंड तो कर्म करिया को हमको पड़ो कर्म बिना ए जीवन निरर्थक आ गोटे कौन ना कर्म सरीगले से ईश्वर पाखक फेरी जावाक पड़े बोली आमर विश्वास रही तेणु सुकर्म करिले आउ जन्म नवाक पड़े ना ईश्वर प्राप्ति हुए स्वर्ग प्राप्ति हुए वैकुंठ प्राप्ति हुए बोली आम शास्त्र रे कथा अच्छी से जिनस ये रही एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप आजिर दिनांते मत आहरी बहुत बाट अच्छी जीवाई अर्थात फार्म हाउस को जीवाई मो घर को जीवाई जोठी कि शोइबा पूर्वर मोर आहरी किछि काम बाकी रही जाइछि एवं शेष जीवनर शेष रे मते आहरी अनेक काम करने को पड़ो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप कथा अच्छी या ओडिया करा जाइए कविताटी को ये जो पद दीटी तमें जानी डॉक्टर महाधर मानसिंह ट्रांसलेशन रे आगरे पड़ी पथ बहुत दूर आहरी रही बाकी चली चली न पड़ी थकी मुदिबा आगुरु आखि आम समस्त को जीवनर स्पान भितर जीवनर परिसीमा भितर माइल्स टू गो बहुत बाट जीवाक पड़ो एवं जीवनांते जीवन जिते सरीज सेतबले आम शेष निद्रा को चलीजु जो निद्रा रु आउ ए जन्म रे उठिबार नाही तेणु से जीवन भितर आमको अनेक कर्म करिया पड़ो कारण मैन इज नोन बाय द कंपेनियन ही कीप्स आमे सत्कर्म करवा सत्संग करवा एवं मैन इज नोन बाय हिज डीड्स नॉट बाय इयर्स गोटे कथा अच्छी विवेकानंद 39 वर्ष बंचिले किंतु अमर हो गले जॉन कीट्स 26 वर्ष बंचिले किंतु अमर हो गले पीबी सेली पर्सी बिसी सेली से भी 28 वर्ष 29 वर्ष बंची थे एमानकर जीवन काल अल्प थिला किंतु कर्म जोगु से माने अमर हो गले
सबुदिन तांके दुनिया मन रखी और मन रखियो मध्य आमे सबुबले तांको मन पकाउछु एवं तांकर सब किछि को फॉलो करूछु। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। तो आज आम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग पढ़िलु। जदि तुम बर्तमान 5-10 मिनिट तुम्हें जहाँ तुम डाउट्स थी पचार एवं मु क्लियर करदेवी।